सर आवाज आ रही है। हेलो सर, हेलो। सर एसएचएम का अच्छा नहीं रहने दीजिए, आवाज सबकी आई है। अच्छा ठीक है। लॉ पार्टिसिपेंट टू ऑल ये हो गया। तो अब मतलब सवाल में सबकी आवाज है। सर आवाज आ रहा है। ठीक है, फिर इसको हटाइए, बताइए सर आप। इसको हटाइए। नो करते हैं। नहीं सबमिट हो गया। अच्छा ठीक है। So now good morning to all of you. Let's start. Let's start. Are you hearing me? हमको सुन रहे हो? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, सुनाइए सर। यस सर, आप ऑडिबल हो। यस सर, यस सर, यस सर। ऑडिबल है सर आप। Magnetic vectors. Before discussing magnetic vectors, let us review the previous item. Let us revise the previous item. सर प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए सर। Before starting this item, बहुत नॉइस हो रहा है सर। please. म्यूट ऑल करिए, म्यूट ऑल करिए। Listen to me. क्या होता है? सर सबको म्यूट कर दीजिए। सर म्यूट म्यूट कर दीजिए सर। यहाँ बहुत तेज है। Before discussing the three magnetic vectors which we have to discuss today, let us review recollect the previous item. So suppose if there is a parallel plate capacitor, what you will do then capacitors can be calculated simply by Q by V. Here we assume that the electric field is uniform as constant throughout this plate. Then we can easily calculate what is the capacitance and so on. Now if you see, if the electric field vector is not uniform, not constant, then in that case the evaluation of the field strength or any force experienced by the charge within this region will be a little bit difficult. So to make it easy, if I mean to say that if the electric field configurations is not simple, then in order to evaluate describe the electric field, we have to introduce two other vectors, that is D and P. So electric field intensity vector, displacement vector, and polarization vector. So what I am saying here that if the field configuration is not simple, it is complex, then in order to describe the electric field, electricity field, we have to take the help of, we have to introduce additional two vectors, that is a displacement vector and polarization vector, in addition to the electric field intensity. Just like that, in the case of magnetism, if the magnetic field configuration is not simple, then we have to use, you have to apply three other two vectors. This is what here I am going to discuss today. Three magnetic vectors. Three magnetic vectors, that is induction vector B, intensity magnetic field intensity vector S, and intensity of magnetization N. So today we are going to discuss a little bit about B, H, and N and their rings. The purpose is that why we introduce, we are coming to that point. Just to see. Let us what is the utility, what is the importance to introduce additional vector H and N. ये हम लोग क्यों पढ़ेंगे? Once we have the induction vector, we can calculate the magnetic field intensity, magnetic field strength, and so on. So finally we can describe the magnetic fields. Then why we do study the additional two vectors S and N? For this, we shall consider the Rowland ring. Simple example लेंगे, Rowland ring. रॉलेंड रिंग हम लोग कंसीडर करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि ये दो एडिशन वेक्टर का इंट्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है।
So, in order to discuss the three magnetic vectors and their relation, we have considered the Rowland ring. Rowland is nothing but a simple toroid. Solenoid है, hollow solenoid को इस तरह से सर्किट में अगर हम होल्ड करते हैं, that will constitute the toroid. ठीक है? So, let us draw the diagram. Very simple diagram it is. You may draw this diagram. So, here what I am saying, suppose there is a Rowland ring. Rowland is nothing but a solenoid. If it is formed in the form of a ring, then it is solenoid. And that is a toroid and it is called Rowland. In the Rowland ring, what happens? It contains, the inner part contains the ferromagnetic material, magnetic material. Magnetic material, so that we can take it out. The construction of this Rowland ring is such that it is just nothing but a toroid. Toroid is nothing but a solenoid which can be formed by bending it in the form of a circular ring, just like this.
And in this case, we can insert the magnetic material within this hollow portion and we can take it out. मतलब इस तरह का हम लोग डिजाइन करते हैं कि इसमें हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल को डाल सकते हैं और मैग्नेटिक मटेरियल को बाहर ले सकते हैं। ठीक है, सो क्या होगा कि अब यहाँ देखिए ये डॉट जो है, ये डॉट रिप्रेजेंट्स करता है the plane of the chloride or Lowland ring is in the plane of the bore. So here this circular dot represents the current out of the eastern, and here the cross represents circular cross represents the current is entering into the bore. So here if we take the direction right hand rule, then the direction of B will be like this. So once more I am repeating, this is the circular hollow circle represents the windings. Circle with dot represents the direction of current coming out of the plane of bore, and this circle with cross represents the direction of the current entering into the bore. The plane of the chloride or non-ending is in the plane of the planet. So if I take right hand rule, then it will be the direction of the electron. So the direction of B will be along this direction as shown here. Now, if we consider a simple specimen taken out of this chloride, just like this, suppose what I've said that the Lowland ring का construction जो है वो इस तरह से सोलेनॉइड है जिसको मूव करके सर्किल में कर देते हैं, जिसको वाइंडिंग रहता है, इस सर्किल इस डॉट करंट को निकलते हुए दिखाता है, प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड से बाहर आता है। ये क्रॉस जो है वो टेल ऑफ द एरो हेड दिखा रहा है, the current is entering into the bore. So and if we follow the right hand rule, then the direction of B will be like this. So here, if I take a segment of the magnetic material introduced within this, so what I have said that कि अब मान लीजिए इसमें कोई मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें आई नॉट करंट फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक मटेरियल पर रजिस्टर क्या होगा, वो मैग्नेटाइज होगा, उसका अपना इंडेंशन होगा। सो यह जो एडिशनल स्पेसिमेन है छोटा सा डीएल है, डीएल, ठीक है, यह जो डीएल लेंथ का है तो ये क्या होगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर करेगा, that is the M into dl. So magnetic moment is M into dl. Here M is known as intensity of magnetization, that is magnetic dipole moment per unit volume. So क्या हुआ? Put as equation number 1. So if there is magnetic which has been inserted here and it is magnetized, then the magnetic moment causes by this specimen of length dl, here A is the area of cross section, which circular उसका area of cross section है, so the magnetic moment causes by this specimen is equal to N into dl. Okay, here N is the magnetic moment per unit volume. So put the equation magnetic intensity of magnetization per unit volume. So here we must have to multiply into A. Then put in equation number 1. So intensity of magnetization, if it is N, that is magnetic moment per unit volume, then A into the volume of this specimen is the magnetic moment per this by this. Now अब इसे अगर हम लोग ये काम करें इसमें कि इसको हम लोग ये चाहते हैं कि अगर इस रोलन रूम में मटेरियल है कि नहीं, अगर हम लोग एम्पियर्स लॉ लगाना चाहें तो क्या होगा, गौर कीजिए, if we try to apply the
Ampere's law. If we try to apply Ampere's law, then what will happen? अगर इस स्पेसिमेन में रॉलन रिंग में हम लोग ये लगाना चाहें इसमें एम्पियर्स लॉ, तो क्या लिख सकते हैं? गौर कीजिए, according to Ampere's law, ठीक है, एम्पियर्स लॉ अगर इस रॉलन रिंग में लगाना चाहें, इस रॉलन रिंग में लगाना चाहें तो क्या होगा? B डॉट dl, so this स्पेसिमेन is given by mu naught into I. ठीक है, अब अगर इसको उस रॉलन में लगाना तो क्या हो जाएगा? B into 2 pi r naught is equal to mu naught into I. यहाँ पर इसको हम लोग और लिख सकते हैं, mu naught m naught into I, इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, इक्वेशन नंबर, यहाँ देखो B को हम लोग इस सर्किल में, इस सर्कुलर रिंग जो एवरेज मीन रेडियस r0 है, इसमें अगर एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो उस केस में हम लोगों को क्या होगा? ये इक्वेशन हम लोगों को मिल रहा है, B dot into mu naught into I, Ampere's law के अनुसार m naught is the number of turns in that Rowland ring, where n naught is the number of turns in the Rowland ring. I naught is the current in each winding. I naught current in each winding. N naught is the number of turns over the whole Rowland ring. So from here, if I want to calculate B, then B will become how much? Mu naught n naught I naught upon 2 pi r naught. I've got it. Now concentrate on this equation. Have I written it? Yes. This equation number 3. Equation number 3. अब देखिए इस इक्वेशन में क्या होगा कि अगर इस रॉलन रिंग में, अगर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है तो क्या होगा? जो मैग्नेटिक इंडक्शन फैक्टर होगा या फील्ड होगा वो केवल करंट के चलते होगा, और अगर इसमें हम मैग्नेटिक मटेरियल डालते हैं तो वह मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, तो उसमें ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन फैक्टर भी होगा। ठीक है, क्या होगा? वो ज्यादा मैग्नेटिक वेक्टर प्रोड्यूस होगा। मेरी आवाज सुन रहे हो? ठीक, एक थोड़ा ठीक पेन से लिखिए। एक थोड़ा थिकनेस बढ़ा दो। सर ठीक कर दिए थोड़ा सा। सर वो म्यू है सर, m into dl into a। डार्क लिखिए, दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा डार्क लिखिए, कुछ नहीं दिख रहा है सर। सर लाइट दिख रहा है सर, पूरा कुछ दिख ही नहीं रहा है। सर रेड करिए ना, स्लाइड चेंज करिए। ये दिख रहा है? हाँ सर डार्क दिख रहा है। कलर चेंज कीजिए सर। सर m into dl into a म्यू है सर। म्यू इज हाँ, इक्वल टू dl into a,
सर थोड़ा ठीक लिखिए ना, दिखाई देगा। आपको नोटेशन के सर वो भी एक्स्ट्रा सा लग रहा डायग्राम बनाए ना सर, उसी तरह लिखिए, सही सही दिख डार्क रहा है। लिखिए सर, डार्क। लास्ट अपना hand down कर लीजिए, सर। यस सर। सर थोड़ा आवाज भी क्लियर नहीं है सर। अरे सर आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए सर। लिखा है क्या? ये दिख रहा है तुम लोगों को? नो सर। नहीं सर, नहीं सर, दिख क्लियर रहा है। थोड़ा सा बोल्ड करके लिखिए सर। ठीक है, ठीक है। बोल्डर। सो मोबाइल पे नहीं दिख रहा सर, पीसी पे देख रहा हूँ। बस बस नेटवर्क अच्छा है तुम्हारा। according to Ampere's law, क्या लिख सकते हैं? B dot dl पेंट ढंग से रखे हैं पा तो उतना भरे अच्छी नहीं है। खाली कोई 1 लीटर फिरोजी पेंट छोड़ के आगे से 1 लीटर का कोई पेंट नहीं। इंटीग्रल भाई of चुप रहो ना प्लीज। B dot dl is equal to mu naught into I. It was perhaps equation number 1. So if I apply this equation, Ampere's law in the form B dot dl is now is visible, I think so. Is it visible? यस सर, यस सर यस सर। But be with अभी us. ठीक है, sir. So you all, so be with us. So B dot dl is equal to mu naught into I according to Ampere's law. Now I am saying that if I apply this form of Ampere's law to the ball and ring, then what will happen? B is constant. So B into 2 pi r naught. 2 pi r naught, and that is equal to mu naught n naught into I naught. Put it in case number 2. I think so. Yeah. No, it was case number 2. सुविधा होगी. It was case number 3. On this equation, I2 जैसा दिख रहा है। mu is equal to m a into dl. This was equation number 1. That is the magnetic moment caused by that slide. That has been सर ये क्या है? एक आने पूरा एरिया है एरिया। हाँ सर दिख रहा है सर। मैग्नेटिक मोमेंट वो पार्ट का है ना जो आप काट के निकालेगा। डीएल सर इसी का मैग्नेटिक मोमेंट है ना ऊपर। देखो इसमें क्या किए हैं, ये रोलन रिंग और टोरॉइड में डिफरेंस क्या है कि टोरॉइड में हम लोग क्या करते हैं कि फॉलो जो सोलेनॉइड है सर इक्वेशन 1 फिर समझा दीजिए। ठीक है, रोलन रिंग में सर इक्वेशन 1 समझा दीजिए फिर। समझाने तो ना, कुछ समझा रहे, पागल है भाई प्लीज वेट, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। तो रोलन रिंग में क्या होता है कि हम लोग इस तरह का डिजाइन करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं कि वी कैन इंसर्ट द मटेरियल इन द हॉलो पोर्शन, वी कैन टेक इट आउट। हॉलो मटेरियल, इस हॉलो पोर्शन में से हम लोग मटेरियल इंसर्ट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। यहाँ तक ठीक है? सर एक बार रिपीट कर दिया ना, एक बार रिपीट कर दिया ना। कोई छोटा सा स्पेसिमेन, वो जो मटेरियल इंट्रोड्यूस के इंसर्ट के इसमें, उसी का एक छोटा सा पोर्शन लिया स्पेसिमेन ऑफ लेंथ dl. So this is the length dl of the specimen. सर रोलैंड रिंग एक बार और बताइए सर। अच्छा प्लीज I will repeat. Now you don't repeat this question, I will repeat. So here of the specimen, therefore this element length dl, A is the area of cross section of the specimen, and dl is the length. So the magnetic moment of this specimen will be ma. M is the intensity of magnetization, A is the area of cross section, dl is the length. So the volume will be A into dl. What is M? Please. So the magnetic moment, intensity of magnetization. भाई लोग M क्या बोले यार सर? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। So here M is nothing but the intensity of magnetization. So M is the intensity of magnetization. If we multiply it by volume, then this expression will give rise the total magnetic moment
possessed by this specimen under consideration. Now, Rowland is nothing but if you take a solenoid, hollow solenoid, and you turn it into a circuit, then this will gives rise the chloride, and in that chloride, we can insert the magnetic material, we can take it out the magnetic. So here we are assuming that the construction of the Rowland ring is such that we can insert the magnetic material, we can take it out. So now if I consider here, if I apply the Ampere's law for this hollow Rowland ring, then we can write B dot here is equal to mu naught into I. If I apply this equation, Ampere's law, in that case, here it is. इस केस में अगर अप्लाई करेंगे, B dot R naught is the mean radius because the hollow ring has some space thickness, so it has radius. So we take the mean radius. So R naught is the mean radius. So according along this path, B dot here will be mu naught into I. That is B into 2 pi R naught. R naught is the mean radius. Is the mu naught N naught I naught. I naught is the current in each winding, which is constant. But N number of turns, N naught is the number of turns winding over the Rowland ring. So B into 2 pi R naught is given by this expression. So from here, if I calculate, सर yeah. सर 3 मैग्नेटिक वेक्टर जो बताया था ना उसको सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर. अभी वही चलिए इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वेक्टर बाहर पूछ रहे हैं. So from here, B into 2 pi R naught is equal to mu naught N naught I. Now you see right hand side. Right hand side depends upon N naught I. Mu naught is the permeability. So don't worry. If in this hollow ring, in this case, N naught is the number of windings, I naught is the current. So if I naught and N naught remains constant, try to see, if N naught, I naught remains constant, remains unchanged, then B is dependent upon I naught, R naught upon 2 pi, मतलब constant होगा. चाहे उसमें magnetic material रहे core में या नहीं. Try to concentrate here. Now we will discuss this equation. सर इंक खत्म हो गया इसमें. जरा ऊपर पेन पलट दीजिए सर. So हम लोग बात कर रहे थे दम लगा के लिखिए. I naught is the current in each winding. तो क्या हुआ इस केस में हम लोग गौर करें इस इक्वेशन पर, सो हम लोग देखते हैं कि B का जो वैल्यू होगा वो N naught I naught पर डिपेंड करेगा. तो किसी फिक्स्ड डिजाइन वाला लिंक के लिए B इंडिपेंडेंट है चाहे उसमें मटेरियल रहे या नहीं. सो दिस इज नॉट द कंडीशन. ऑब्वियस है कि जब इस Rowland ring में हम लोग मटेरियल इंसर्ट कर देंगे, इस केस में क्या होगा वो मैग्नेटाइज होगा तो B का वैल्यू बढ़ जाएगा. अगर तो हम मटेरियल इसमें नहीं है तो N naught I naught पर डिपेंड करेगा, लेकिन जब मटेरियल उसमें इंसर्ट कर देंगे तो वह मैग्नेटाइज होगा और उसके चलते यह जो B का वैल्यू है वो बढ़ जाना चाहिए. So from here, from this equation we find that the value of B it depends upon only N naught I naught for a given R naught. It means if the magnetic material is within the Rowland ring, B will have obviously higher value, and if it is not there, then it will be a lower value. So this form of Ampere's law is not applicable, does not predict the exact correct result in this case. So what happens? We have to modify it. Now यहाँ हम लोग का टेक्निक क्या होगा? Try to see. एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं
इस इक्वेशन से ऑब्वियस है अगर यह फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ को ऑलिम्पिक में लगाएंगे तो B का वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं होगा। अगर उसमें मैग्नेटिक मटेरियल है तो B का वैल्यू ज्यादा होगा, अगर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है तो B का वैल्यू कम है। So this form of Ampere's law is not applicable in this case. So we have to change it. So what is our basic technique? Basic technique हम लोग का ये है इसमें कि अब देखिए ये जो हम लोग का गलत रिजल्ट आ रहा है अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर मटेरियल के चलते हम लोग क्या करेंगे कि I नॉट ट्राई टू सी इसको I नॉट करंट के चलते यहाँ पे स्ट्रेस देना होगा। फर्स्ट दिमाग को ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ जाएगी। बाकी फ्लूइड एक्सपेरिमेंटल इक्वेशंस आते नथिंग। हम ये करते ये जब मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ था तब I नॉट करंट के चलते वह इतना मैग्नेटिक मोमेंट रिक्वायर्ड था, ठीक है। और जब मैग्नेटिक मटेरियल है तो देखते हैं एम्पियर्स लॉ का वो फॉर्म लागू नहीं हो रहा, वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा। तो हम लोग का बेसिक और आइडिया क्या है, बेसिक लॉजिक है कि जितना यह मैग्नेटिक मोमेंट ट्राई टू सी I नॉट करंट के चलते यह एक बार फिर से इसको रिपीट करना है, इसको ध्यान दीजिएगा, बाकी कुछ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, बाकी समझ जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो I नॉट करंट है इस वाइंडिंग में इसके चलते यह स्पेस में जितना मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर करता है, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं रखते हैं और I नॉट को इतना बढ़ा दें ताकि वो उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करे जितना ये कॉइल के परचेस में स्पेसमेंट के परचेस में होता है, ठीक है। बात समझे इस लॉजिक को? क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एम्पियर्स लॉ जो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में जो एम्पियर्स लॉ है वो प्रिडिक्ट सही पिक्चर नहीं दे रहा है, एग्जैक्ट रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग की कोशिश है कि I नॉट करंट के चलते जब ये मैग्नेटिक मटेरियल नॉन बीम में रहता है तो जितना वह मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर करता है उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट प्राप्त करने के लिए हम लोग I नॉट को बढ़ा दें। So now we are assuming that I नॉट is increased by I n नॉट। मतलब क्या हुआ कि एक वाइंडिंग पहले I नॉट करंट था वो इतना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता था इस स्पेस में रॉलेंड रिंग में था। अब हम लोग कह रहे हैं कि इसको हम लोग हटा और इस करंट को ही इतना बढ़ा दें ताकि वह उतना ही बी फील्ड प्रोड्यूस करे जितना कि इसके परचेस में। ये ओके, ये बात समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड डाउन कि व्हाट आई सेड दैट दिस इज एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ। ये लॉ इस फॉर्म में लगाएंगे तो हमको बी का सही वैल्यू इस रॉलेंड रिंग में नहीं निकलता है, क्योंकि जब मैग्नेटिक मटेरियल वहां है तो बी का वैल्यू ज्यादा होगा, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है तो बी का वैल्यू कम होगा। लेकिन इस एक्सप्रेशन से हमको बी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आता है। तब हम लोग सही रिजल्ट के प्रेडिक्शन के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं, हम लोग लॉजिक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि यह I नॉट करंट के चलते जितना यह मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर करता है उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग करंट को बढ़ा के प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये फील्ड जो है हम लोग का प्रोड्यूस। सो यह जो फील्ड बी है इसका वैल्यू सेम, देखिए यहाँ क्या है, यह केवल n नॉट पर I पर डिपेंड कर रहा है, चाहे मैग्नेटिक मटेरियल रहे या नहीं, बी का वैल्यू सेम आएगा। लेकिन ये ऑब्वियस है कि अगर मैग्नेटिक मटेरियल है तो बी का वैल्यू ज्यादा होगा, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है तो बी का वैल्यू कम होगा। तो हम लोग की बेसिक कोशिश ये है कि अब I नॉट को ही इतना बढ़ा दें, सपोज I n नॉट, जो कि जितना यह मैग्नेटिक मटेरियल के चलते मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर्ड होता है उतना ही ये I n नॉट का भी चलते हैं, ठीक है। इज इट ओके? ये पॉइंट सही हुआ, क्लियर हुआ? एक बार फिर से सर पैरामैग्नेटिक मटेरियल सर पैरामैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट करेंगे तो सर मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा ना सर? एक मेरी बात सुनो, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजाइन एस्सम्पशन था कि इसमें मैग्नेटिक मटेरियल रहे तो मैग्नेटिक इंडेक्स क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल जब रहेगा वो मैग्नेटाइज होगा I नॉट करंट के चलते तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। लेकिन इस एक्सप्रेशन देखिए बी नॉट जो है वो केवल n नॉट I नॉट पर डिपेंड करता है। ये ऑब्वियस बात है कि अगर मैग्नेटिक मटेरियल है तो बी का वैल्यू ज्यादा होगा, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है तो बी का वैल्यू कम होगा।
So इस Rowley में this form of Ampere's law is not applicable. It doesn't predict the exact result. तो हम लोग की कोशिश क्या है कि मैग्नेटिक मटेरियल रहे या नहीं रहे, हमको B का वैल्यू सही से। हम लोग क्या कर रहे हैं कि I1 करंट के चलते I1 करंट के चलते जितना मैग्नेटिक मोमेंट यह स्पेसिफिक एक्वायर करता है, ठीक है, उसको हम चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल हटा दें और यह I0 करंट को ही हम लोग बढ़ा दें ताकि मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही एक्वायर करे जितना यह स्पेसिफिक के रहने के कारण। So our technique is that to achieve the same magnetic moment, now we are going to increase I0 by Im. So Im is the magnetizing current which produces additional magnetic vector B, which is obtained while in the presence of this magnetic material. Magnetic material के रहने पर जितना B प्राप्त होता है उतना ही B हम लोग इस तरह से प्राप्त करते हैं। So magnetic material को हम लोग हटा देंगे और Im को बढ़ा देंगे। So यह इक्वेशन क्या फॉर्म ले लेगा? Then we may write, क्या लिख सकते हैं? Then we may write B dot dl is equal to mu naught I plus Im. Put as equation number 4. देखो क्या किया यहाँ B dot I था, I का वैल्यू कितना था? I naught, N naught, I is corresponding to I naught is the current in each winding. There are n number of windings, so the total current I is equal to N naught into I naught. लेकिन यह जब फॉर्मूला लगाते हैं तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू B का नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या किए, अब मैग्नेटाइजिंग करंट I naught जो है उसी को हम लोग Im naught से बढ़ा देते हैं ताकि जो B वेक्टर मिले वो उतना ही मिले जितना इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। सो हियर इट इज रिटन एज B डॉट इनटू mu naught is equal to I into Im naught। अब इस इक्वेशन को अगर नॉलेज रिंग में लगाएं तो क्या मिलेगा? If apply this equation in the Rowland ring, then B into 2 pi R naught, क्योंकि B कांस्टेंट है उस सर्कमफरेंस में, सो dl is 2 pi R, तो बराबर कितना हो जाएगा? U naught N naught I naught plus N naught I M naught। कैलकुलेशन नंबर 5 आई थिंक सो, यस, ठीक है। अब इस केस में देखिए क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन वी हैव द बोथ इक्वेशन फॉर दैट। ये इक्वेशन में जो पहला फॉर्म था उसमें B का वैल्यू था वो एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं था। अब यहाँ पर क्या है, चाहे मैग्नेटिक मटेरियल रहे या नहीं रहे, अगर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं रहेगा तो यह वैल्यू हमको 0 हो जाएगा। उस केस में जितना मैग्नेटिक मटेरियल करके B बढ़ा है that part is given by this expression। So here we have that is Im naught is the current in each winding which produces the same magnetic as acquired by the presence of this magnetic material। So we have B dot is equal to this। Now we have the magnetic moment। क्या हो जाता है? अच्छा तो प्रॉब्लम तो स्लाइड अब इसके इसमें ख्याल कीजिए, I am not versed with the technology, so you can make some problem with me, huh? स्क्रीन में ही कोई प्रॉब्लम है शायद, हैंग हो गया है। ऑन ऑफ करिए सर, लग रहा है स्क्रीन। पेन का लगता है चार्ज खत्म हो गया सर। सर काम नहीं कर रहा स्क्रीन सर को बुलाइए। सर रीस्टार्ट करिए, सर रीस्टार्ट। सर एप्पल का खरीदिए सर, एप्पल का
एक बार तो बहुत कम है। स्मार्ट बोर्ड ऑन ऑफ करिए सर। It's okay, sir. We support you. We support you. स्लाइड कीजिए सर, स्लाइड कीजिए सर, स्लाइड। अरे किसका इको हो रहा है? तो हम लोग कह रहे थे कि अब देखो सर्कुलर कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है n into I into a। नंबर ऑफ पॉइंट्स n हो, करंट I हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a हो, the total magnetic moment caused by that one is given by the substitution equation number 6। सो यहाँ पर गौर कीजिए कि अगर I करंट है तो I करंट के चलते वो जो सर्कुलर वाइंडिंग है वो इतना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब गौर कीजिए I am not करंट लोग डाले हैं, उसके चलते जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए? यह जितना एक्वायर किया। सो यू नोट डाउन, therefore m into a into dl। तो बीच में इक्वेशन 3 को मिटाइए ना। ये बराबर हो जाएगा n का वैल्यू क्या होगा? n नॉट अपॉन 2 पाई r नॉट and then dl। यस, आप लोग को कुछ बोल रहे थे। देखो इसमें क्या हुआ कि ये डीएल लेंथ का जो स्पेसिफिक है, ट्राई टू सी डीएल लेंथ होगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ वाइंडिंग होगा। टोटल सर्कुलर सरकमफ्रेंस में कितना नंबर पॉइंट्स? n नॉट। सो डीएल कितना होगा? n into d। नहीं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इज n नॉट, टोटल सर्कुलर सरकमफ्रेंस इज 2 pi r नॉट। सो n नॉट upon 2 pi r नॉट gives the number of pointings per unit length. If you multiply that by dl, so the number of pointings contained within this length dl is given by this expression. ठीक है, and I am what is current is winding, so multiply by this will give the total current. A is the area of सर ये वाला फिर से बता दीजिए। यह जो n into a into dl है, या वह मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाइड है जो यह स्पेसिफिक के प्रेजेंस में, और यह थ्योरेटिकल इसके बराबर होगा। So from here what we write? सर एक बार फिर बता दीजिए। Yes. सर ये वाला इक्वेशन फिर से बता दीजिए ना, वो n नॉट 2 पाई r नॉट वाला। ये हाँ यस सर। यस सर। जस्ट एक मिनट, ये जो सर्कुलर में टोटल नंबर पॉइंट्स n नॉट है, ठीक है? यस। एक वाइंडिंग दूसरा वाइंडिंग यहां से हम जाके इस जाके, सो नंबर 1 2 3 इस तरह से टोटल इसमें n नॉट है। इसका एरिया कितना है? 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r नॉट होगा। तो n नॉट अपॉन 2 पाई r नॉट gives the number of windings per unit length। हां, ये dl है तो कितना होगा वाइंडिंग? सर तो डीएल से मल्टीप्लाई कर देंगे सर डीएल का आ जाएगा। तो so within a square bracket this gives the number of winding which covers this length। I am not is the current magnetizing current, A is the area of cross section, here A is the area of cross section। So m into a into dl is equal to this much। ये मैग्नेटिक मोमेंट मटेरियल के प्रेजेंस में होगा, ये करंट को बढ़ाने के बाद इतना होगा। सो लॉजिक ये था कि करंट को बढ़ा दो ताकि जितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंस में क्वांटा उतना इस करंट के चलते प्राप्त हो जाए। सो फ्रॉम हियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 6। सो अब यहां से देखो इस इक्वेशन से 2 पाई r इससे कितना मिलेगा हमको? From equation 6 we may write, from equation 6 we may write, क्या लिख सकते हैं? P into 2 pi r naught is equal to mu naught n naught I naught plus mu naught mu naught 2 pi r naught n into this much। ठीक है,
So from here, in generalizing this equation, we may write on generalization A. This equation may be written as B dot dl is equal to mu naught n naught I naught plus into mu naught. So from here we may write or इस इक्वेशन से और हम लिख सकते हैं और इस इक्वेशन से लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ b डॉट माइनस म्यू नॉट इंटू n upon mu naught into dl is equal to कितना होगा mu naught n naught into I naught। इस इक्वेशन से जो जनरल रखना इसको इधर ले आइए। सो b naught minus mu naught n divided by this mu naught is equal to I। So from this equation we will write like this। So what happens is it this equation number put it in this equation। So इस इक्वेशन में आंसर b minus mu naught n upon mu naught is equal to n naught into I। So in general this expression को हम लिखते हैं x is equal to b minus mu naught into n upon mu naught। So यह जो एक्सप्रेशन है अगर ये इतना हम मान लें तो यह एक्सप्रेशन लिखा जाएगा वो होगा h dot dl is equal to s dot dl is equal to n naught into I naught, that is equal to I। ठीक है। सो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू h is equal to b minus म्यू नॉट इंटू n और b is equal to होगा mu naught h plus mu naught into n। So अब इस इक्वेशन क्या है? What is I? I is the actual value in things। So here s doesn't depend upon b in this case। So अगर हम लोग b के जगह पर s निकालें, b के जगह पर s निकालें, वो हमें it depends b is equal to mu naught into h। ठीक है। सो हियर वी से दैट ये मैग्नेटिक मटेरियल चाहे वो वहां रहे चाहे नहीं है, मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा तो इंडक्शन वेक्टर b ज्यादा था, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं था तो b कम था। अब हम लोगों ने क्या किया, वह जो डिपेंडेंस था उसको हम इन टर्म्स ऑफ s लेंगे और तो b डिपेंड्स अपॉन h होगा। ठीक है, b डिपेंड्स अपॉन s एंड n। So here, in place of writing in terms of in the form of b dot dl, if I write Ampere's law in this case, then from this equation we can calculate as the magnetic field intensity h, and here it depends on your method, चाहे magnetic material रहे चाहे magnetic material नहीं, तो h dot dl is applicable in this form। So we have modified Ampere's law in the Rowland-Ring by this form, h dot dl is equal to mu naught n naught I naught, that is equal to I is the actual current। So here this is the one of the relation between three atoms, three magnetic atoms। यहाँ थोड़ा रुके ना प्लीज, कुछ पूछना है तो बोलो। ये कोई फिर आई क्या है सर? आई देखो n naught into I is n naught into I naught is the current in each winding, n is the number of turns। So यह एक्चुअल करंट दे रहा है सर आई एन नॉट क्या? सो अगर s dot dl लेंगे तो हम लोग क्या होगा n naught into I that is equal to I। ये अब b जो देखो पहले क्या था, b मैग्नेटिक मटेरियल रहे नहीं रहे b का अलग अलग वैल्यू प्रेडिक्ट होता था एम्पियर्स लॉ से।
लेकिन जब S के रूप में लेंगे तो S is independent of the purchase of material और access of material depends only on I. So in that case S के रूप में लेंगे यह लॉ फॉर्म जो है बेस का ये दोनों लॉ. Yes, no. सर आई एम नॉट क्या है? I यहाँ टोटल करंट है. Yes, obviously. I is the total current. और आई नॉट आई एम नॉट क्या है? I know is the current is point I है तो उसे I not होगा. अगर आई एम नॉट और सर वो जो प्लस म्यू नॉट 2 पाई आर नॉट इंटू एम लिखा है सर वो क्या है यहाँ? ये हाँ यस सर. ये पहला एक्सप्रेशन है ना मतलब पहला सर आई एम नॉट क्या है? आई एम नॉट क्या? सुनो आई एम नॉट प्लीज टेक अस ये हम 3 बार बोले थे ध्यान दो. हम लोग का बेसिक लॉजिक क्या था? बेसिक लॉजिक ये था कि बी डॉट नाउ वी आर डिस्कसिंग. अभी इस हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं. नाउ वी आर डिस्कस. देखो हम लोगों ने लिखा था ये बी डॉट यू डोंट राइट दिस पार्ट नाउ is equal to mu naught into r. इसको हम लोगों ने लिखा था mu naught n naught into I. यस सर. इसको हम लोग लागू किए थे रॉलेंस रिंग. तो इधर आया था 2 pi r naught into b. Because b constant along the circummean radius. So here is equal to 2 pi r naught the circumference of the mean radius. So here I. So here r naught is the radius. ठीक है. सो इससे b का हम लोगों ने कहा था I naught plus more m. I naught is the current in this one. N naught is the total number of turns in the Rayleigh ring. So b का वैल्यू कितना? इस इक्वेशन पर हम लोग गौर करें तो b का वैल्यू जो है वो N naught I naught पर डिपेंड करता है तो फिक्स R naught. ठीक है. मतलब क्या हुआ? इस इक्वेशन को फिर से इंटरप्रेट करेंगे. दो केस. अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है इनसाइड द रॉलेंस रिंग तो उसके b का वैल्यू कितना होगा? इतना ही होगा. अगर मैग्नेटिक मटेरियल डालते तो b का वैल्यू क्या होगा? म्यू नॉट एन नॉट आई नॉट बाय 2 पाई आर. यस सर. यहां पे चलो प्लस में m वाला आ जाएगा. देखो प्लस आई एम ये फॉर्मूला लगाएंगे मटेरियल अगर नहीं रहेगा तो b का वैल्यू इससे दिया है. लेकिन अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं तो मैग्नेटिक बढ़ जाएगा. लेकिन परमाणु किस पर डिपेंड करता है? तो दवाई होगा. समझो इसको. सर हां सर पैरामैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट करेंगे तो बी सर घटेगा ना सर? हम अभी जनरल डिस्कशन कर रहे हैं उसके बाद हम पारा डाई और फिर अभी जस्ट अभी मैग्नेटिक मटेरियल लेके चलना है. मान लो परमाणु पहले तक चलो सर एक ठीक है हिस्टेरिसिस है. ठीक है सर. आगे बढ़ो. सर H सर हिस्टेरिसिस है. H क्या है सर? मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस है क्या? थ्योरेटिकल डेरिवेशन है. यह जो एक्सप्रेशन है b - mu naught m upon mu naught ये फ्रीक्वेंटली याद करता है. तो साइंटिस्ट ने क्या किया इस पूरे एक्सप्रेशन को एक लेटर से हटा दिया दैट इज h. तो हिस्टेरिसिस नहीं है ना सर? m लेकिन mu. So यह लॉ होगा यहाँ. H is the magnetic intensity, magnetic field, magnetic intensity vector और magnetic induction vector दोनों दो चीजें जो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ें या आप लोग पढ़ेंगे. एच को बोलते हैं. So H is the magnetic intensity vector कह सकते हो. B is the magnetic induction vector. Actually क्या होता है इन ब्रीफ 2 मिनट नॉन ड्रैग कर दिया. होता क्या है कि जैसे मान लो कोई मैग्नेट वैक्यूम में तो इसके चलते जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो केवल मैग्नेटिक फील्ड होगा. लेकिन अगर यहाँ कोई इस फील्ड में कोई मैग्नेटिक मटेरियल प्रोड्यूस करना है इसके मैग्नेटाइजिंग फील्ड के चलते वह मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होगा उसका अपना एक अलग फील्ड जनरेट होगा. So if we consider any cross section area then there will be 2 types of pole lines, one due to this source, another due to induced magnetization, and that is given by the B vector. So B vector gives the total lines of magnetic lines crossing one normally. That is the magnetizing source and induced source. Induced source हुआ किसी मैग्नेटिक मैग्नेट है उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख देंगे तो वह भी मैग्नेटाइज होगा उसका अपना फील्ड अप्लाइंस होगा और इसका मैग्नेटाइजिंग सोर्स
दोनों का सम जो देगा इन जनरल सर एच वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? किसका? सर एच का। एच का सर इसका डायरेक्शन क्या होगा सर? वो तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। डीएल के हाँ, ये चीज क्लियर होगा, शायद नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे तब। उसमें बी कंटिन्यूअस होता है, जब बाउंड्री कंडीशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक का कंटिन्यूअस होता है टेंजेंट कंपोनेंट, दूसरा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट। सर एच डॉट डीएल जीरो होगा सर, एम्पियर्स ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ सर इसी से ना डिराइव हुआ। एच डॉट डीएल जीरो तो आई जीरो। हाँ एच डॉट डीएल अगर जीरो होगा सर, वो सर अगर डीसी करंट होगा सर, एच डॉट डीएल तो जीरो ना हो जाएगा सर। ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक से किताब पढ़ोगे पता चलेगा, तो पढ़ोगे तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एच डॉट ये प्रत्येक साल आता है, एच डॉट डीएल शुड बी जीरो। एक सिंपल एग्जांपल दें, अगर मान लीजिए लेट अस ट्राई टू से कि अगर हम लोग ये एच डॉट डीएल के आपका अगर जीरो होगा तो आई जीरो हो जाएगा। यस सर। सर आई जीरो का मतलब करंट इनकमिंग इक्वल टू करंट आउटगोइंग ना। ये आई का टोटल करंट मतलब उस वाइंडिंग में आई जीरो नहीं हो सकती, उस वाइंडिंग में आई वो टोटल करंट है ना। आई से टोटल करंट दैट इज आई नॉट इनटू एन नॉट, और जब वो जीरो होगा तो हम सोर्स को टर्मिनेट करेंगे तब जीरो होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन प्रत्येक साल बच्चे पूछते हैं कि एस डॉट डीएल से तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर एस डॉट डीएल जीरो होगा तो आई जीरो होगा, सो एस डॉट डीएल नॉट बी इक्वल टू जीरो। और दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन है, जब हम लोग ये पढ़ेंगे आई विल डिस्कस डिफिनेशन ऑफ बी। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ बी जब पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस, तब वहां पर क्लियर होगा कि ये कहीं पढ़ा होगा बी सब क्या होता है। F इसका जो होता है QV into B, QVV V क्रॉस B। जब यस सर फ्लो करती है v वेलोसिटी से तो जो मैग्नेटिक ऐसे फैक्टर बनता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस। यस सर QV क्रॉस B। ठीक है, पढ़े हो अरे मूविंग चार्ज का फोर्स। हाँ पढ़े सर। यस सर, तब ये होगा लेकिन x डॉट dl जीरो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर आप जो टोरॉइड और रोलैंड रिंग में जो डिफरेंस बताए थे ना, वो एक बार फिर से बताइएगा ना। क्या चीज? सर जो टोरॉइड और रोलैंड रिंग, देखो उसमें कुछ नहीं है, सोलेनॉइड है ना, सोलेनॉइड मतलब क्या होगा, जो सिलेंडर पर वायर तार लपेट दो। ठीक है, जो स्पाइरल होता है ना स्प्रिंग घर में हम लोग यूज करते हैं, सोलेनॉइड क्या हुआ, कंटीन्यूअस वाइंडिंग इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। उसी को जब मोड़ दोगे सर्किल के बनाने वो टोरॉइड होगा, उसमें जब हम लोग इंसर्ट कर देंगे तो वो रोलैंड रिंग होगा और उससे दूरी निकालेंगे। ठीक है, और सर इसका कंस्ट्रक्शन में मेन चीज यही है कि कभी भी हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल डाल सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। वो इसलिए करते क्योंकि जब फ्री मैग्नेटिक कंस्ट्रक्शन में ये है, इसलिए कि हम लोग ये नहीं देखना था, ये जो बी डॉट डीएल था इसको मॉडिफाई करना था। क्यों मॉडिफाई करना था कि रोलैंड रिंग में अगर मटेरियल रहेगा, बाद में हम स्ट्रेस देते हैं कि बी डॉट डीएल में वो म्यू नॉट इनटू आई जो होगा, जो भी हो म्यू नॉट इनटू आई जो होगा वह क्या होगा, वह इंडिपेंडेंट होगा बी से। लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा तो बी का वैल्यू ज्यादा होगा और नहीं रहेगा तो कम होगा। ये फॉर्म है एम्पियर्स लॉ का, ये उसको प्रेडिक्ट नहीं करता, इसलिए उसको हम लोग एस डॉट दिए। और यह जो फॉर्म है इट इज इंडिपेंडेंट, ये टोटल करंट, चाहे एस जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल पर डिपेंडेंट नहीं है, चाहे मैग्नेटिक मटेरियल रहे या नहीं रहे, एस का वैल्यू। सर एच क्या बोले थे सर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोले थे सर। हाँ, एच इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर को जो को, और बी सर मैग्नेटिक वेक्टर। बी यस सर, बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर। दोनों ठीक में है सर। तो दोनों में डिफरेंस है बताइए ना सर। एक डिफरेंस बता देते हैं फिर से इन ब्रीफ कि अगर मान लो कोई मैग्नेट, सपोज दिस इज द मैग्नेट, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, ठीक है, ट्राई टू से टाइम लगेगा। अब इसके चलते क्या होगा, लाइंस ऑफ फोर्स वी कैन से यहाँ से नॉर्थ पोल है इधर तो मैग्नेटिक लाइंस, अगर यह वैक्यूम है
in the absence of magnetized material, तो क्या हो, केवल lines of force चलेंगे, but वह केवल इसके चलते हो, ठीक है, that is the magnetic field intensity या magnetic field, magnetizing field। लेकिन जब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई छोटा सा दूसरा मैग्नेट करते हैं तो क्या होगा, जब भी मैग्नेटाइज होगा, क्या मैग्नेटाइज होगा, इसका अपना एक सेटअप फील्ड होगा, so that total lines of force is called induction, magnetic lines of induction, and that is called our B। हम मान के चलते हैं कि ये लोग जानते हो, पढ़े हो लॉ क्लास, ठीक है। Yes, और sir. कुछ No, sir. here this gives the relation B is equal to mu naught H plus mu naught into N। B is the induction magnetic induction factor, S is the field magnetic field intensity factor, N is the intensity of magnetization। So this is one of the ways। Now you see सर H कांस्टेंट रहेगा तो किसमें मतलब S depends upon I, हाँ S depends upon I। So इस केस में S जो होगा वह कॉलन रिंग में चाहे मटेरियल रहे या नहीं रहे वो सेम है। सर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर सेम है क्या? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर सेम है क्या? नहीं, दोनों अलग चीज है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वी हैव सेड अर्लियर, क्वेश्चन नंबर 1 याद करो। Intensity of magnetization is defined as induced dipole moment सर ये आप म्यू नॉट इनटू म्यू यहाँ पे क्या हुआ, जो म्यू इज so m is the intensity of magnetization, it is defined as the क्या है, अगर मैग्नेटिक मटेरियल का जो होगा मैग्नेटिक पर यूनिट फॉर्म associated with material। Okay, so M और H are different, ठीक है। अब देखो इन जनरल जो हम लोग बात करते हैं नॉन एक्सक्लूसिव फील्ड्स को, इन जनरल क्या होगा, थ्री मैग्नेटिक वेक्टर्स B, H and N। ना ये रिलेशन का यही अगर फील्ड कॉन्फ़िगरेशन यूनिफॉर्मली हो तो हम लोग यहाँ से लेंगे या ये फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन। फील्ड कॉन्फ़िगरेशन यूनिफॉर्मली हुआ मतलब कि अगर मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो विद इन एक्सपेरिमेंट को मान लेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सो कॉल्ड इज यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट इंटेंसिटी। लेकिन अगर ये कट हो जाए इस तरह से तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो अलग होगा, बिना सचिदानंद तो उस तरह के केस भाई सचिदानंद भाई हाँ जी बोलिए अपना माइक। यस सर आपको नहीं बोल रहे। सो दिस इज द रिलेशन। अब क्या करो, क्या होता है इन जनरल अगर डायोमैग्नेटिक पारा होता है मटेरियल हम लोग लगाएंगे तो इसमें इन जनरल रिलेशन पाएंगे mu naught into H। Experimentally, it has been found that for di and para these are K is called completely permanent A and into ठीक है। So अगर inverse relationship है यहाँ से सर तो हम लोग को रिलेशन M is equal to Km minus 1 into H। KM क्या है सर? सर KM क्या है? तो अब देखो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ये थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में K is slightly greater than 1 and positive। So आदर्श भाई तेरा माइक से बहुत घर आवाज कर रहा है यार। yeah
सर केएम क्या है वहां से बताइए। केएम क्या है सर? केएम क्या? रिलेटिव परमेबिलिटी जिसको म्यू आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो केएम का वैल्यू पैरामीट्रिकली ग्रेटर देन 1 और पॉजिटिव होता है, तो एम और एच सेम डायरेक्शन होगा। डायमैग्नेटिक में क्या होगा? केएम का वैल्यू स्लाइटली लेस देन 1 होगा, ये नेगेटिव होगा, इसका मतलब उसमें एच और एम जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्टेड होगा। सो अगर याद होगा तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? स्ट्रांग फिट से वीक फिट की ओर जाता है, ये पढ़े होंगे। रिलेटिव केएम क्या है? रिलेटिव यस सर। केएम क्या है सर? केएम अब बाद में पूछना। रिलेटिव परमिएबिलिटी भाई। ये रिलेशन लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा? तुझसे करता है मेरे महबूब अंकित सुंदर भाई, अंकित अपना माइक ऑफ करो। इसको बंद करोगे। मेरा माइक कब से ऑफ? फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? इट इज द phenomenon of hysteresis. hysteresis. So hysteresis में एक चलते इसका केएम जो होता है वो बहुत अधिक होता है और हम लोग उसके लिए अलग से, क्योंकि उसमें इस hysteresis phenomenon एग्जिबिट करता है और इस केस में hysteresis हम लोग पढ़ेंगे। You don't know this figure? सर ये सब कल पढ़ाइए या आज ही पढ़ा रहे हैं सर? नहीं नहीं, ये आज नहीं पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे। हम ये कहते हैं कि वी आर डिस्कसिंग ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डायोफारा में ये रिलेशन होल्ड करता है। दिस पार्ट एक के स्लाइटली ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव होता है, दूसरे के स्लाइटली लेस देन 1 होता है। सो अकॉर्डिंगली वी हैव, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बहुत सारा चीज है जो कि एग्जिबिट करता है, जिससे यह जो लीनियर रिलेशन बी और एच में, एम और एच में यह चेंज करता है। दैट यू फाइंड आई एम सेइंग, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। सो क्या होता है इन जनरल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में यह जो लीनियर रिलेशन बी इज within limit s का proportional m is proportional to h. So the induction factor और magnetization factor जो होगा discrimination factor, ये इस मटेरियल में इन जनरल प्रोपोर्शनल होता है, लीनियर रिलेशन होता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में यह रिलेशन डिफरेंट होता है। ठीक है, सो आज यही तक बोलो। और कोई क्वेश्चन लेट अस डिस्कस। फिर पैरा के लिए ग्रेटर देन 1 होता है क्या? हैं? पैरा के लिए केएम ग्रेटर देन 1 होता है? लेस देन हां डायमेट्रिकली लेस देन 1। तो आप वहां पढ़िए ना, वहां से देखिए। अगर आप लोग पैरामीट्रिक डायमेट्रिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़े होंगे तो पैरामीट्रिक मटेरियल में क्या होता है? ग्रेटर देन इस 1। क्वेश्चन को नोट कर लो। जब हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे यही रिलेशन वहां पढ़ा है। तो अंदर में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, इसमें घटा देता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। घटाता नहीं तो जाता है नहीं, उसको हम लोग उसमें पढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आर्टिकल? और कोई क्वेश्चन? भेज दीजिएगा नोट सर। सर ये म्यू लिखे है एम लिखे है सर? ये नहीं पहले हाँ ये एम के एम माइनस 1 इनटू एच यम ठीक है। सर केएम को कौन सा कांस्टेंट कहेंगे? फिर से बोलो सर केएम को क्या कहेंगे? कांस्टेंट किस चीज का? रिलेटिव परमेबिलिटी हुआ। सर नोट्स भेज दीजिएगा ना सर 2 क्लास का जो। अच्छा ठीक है, नोट्स देखेंगे, फोटो मिलेगा तो भेज देंगे। सर एक कागज का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ना सर। स्क्रीनशॉट नहीं, फोटो भेजिए। हाँ वही जो भी है सर, कागज का सर। क्या हुआ? ये जो आपके पास कागज से आप पढ़ा रहे हैं सर, उसी को भेज दीजिए ना सर। सर आपका कागज मांग रहा है। ये जो आपका नोट्स है ना, इसी को फोटो खींच के भेज दीजिए गूगल क्लास पीडीएफ बना कर सर। सर आप सब भेज दीजिए ना, झमेला मत कीजिए, कहीं पर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ऑफिशियल ग्रुप प्लीज सब रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें? यस सर। अभी जो बोले कुछ नहीं सर, बस नोट्स मांग रहे थे सर। सर ये बोल रहे हैं कि आपके पास जो नोट्स है ना, आप उसका फोटो खींच के पीडीएफ में कन्वर्ट करके ऑफिशियल ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, that I can do.
यस यस थैंक यू सर। वही थैंक यू बोल सर। वो आप कितना अभी कर Thank you, sir. सर परसों आप परसों आई विल ट्राई टू कंप्लीट। परसों घनश्याम सर कैसे सर घनश्याम सर कंटिन्यू करिए सर लगातार इधर से उधर। कॉलेज कब खुलेगा? कॉलेज कब खुलेगा? भाई सर आप लोग कॉलेज में हैं सर? सबसे बड़ा क्वेश्चन, कॉलेज कब खुलेगा? कॉलेज जब खुलेगा तो फिर हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे। सर सुन रहे हैं सेकेंड ईयर वाला को बुला रहे हैं सर आप लोग। अब सुन रहे हैं उस बात में मत जाइए, आपके पास बजाते नोटिस जाएगी, सब कुछ जाएगा, ठीक है। सर आप बताइए सर जो नोटिस रहेगा वो प्रॉपर टाइम से पहले आएगा ना सर? ऐसा नहीं ना कि कल खुलेगा और आज नोटिस दे दिया बोला आ जाओ कल। वही दिया कि आपके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो एनीवे पहले हॉस्टल अलॉटमेंट होगा तब ना। वही तो गद्दा लेके आना है सर। कल कॉलेज खुलेगा और आज नोटिस भेजवा दीजिएगा बोला आ जाओ। अभी हम आए हैं पहले सेकेंड ईयर हो जाएगा तब ना फिजिक्स डिस्कशन के लिए, किसी से भी नहीं आए। इससे जो कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। नहीं सर इससे कोई डाउट नहीं है। सर वो एक तो क्या बोलते हैं सर बताइए ना। जब उस समय अभी बजाते आपको वेल इन्फॉर्म किया जाएगा कि कब आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या गाइडलाइन है आई एम नॉट नो, हम नहीं जानते हैं कि क्या गाइडलाइन है। देख लीजिए कल हमको बोलने दो, सरकार का जो आदेश आए उस आदेश में क्या होगा हम नहीं जानते हैं। फर्स्ट ईयर को बुलाया जाएगा, सेकेंड ईयर को बुलाया जाएगा, थर्ड ईयर को बुलाया जाएगा, या सबको एक साथ बुलाया जाएगा, आई डोंट नो। कैसे बुलाया जाएगा, कैसे आपको रिकमेंडेशन दिया जाएगा, इसके बारे में हमको ऑफिशियली ऑथेंटिकली कोई जानकारी नहीं है सर। ठीक है सर हॉस्टल में बेड का फैसिलिटी रहेगा? नीचे सोएगा? वो सब इरिलेवेंट है, जमीन में सोना है। नो देयर इज नो टाइम फॉर इरिलेवेंट। अच्छा टाइम मिलेगा। बात करने सर मुर्गा के दिन मिलेगा। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे, उसमें स्टेटिस्टिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू सर। सर बाय सर। थैंक यू सर। अरे एंड करिए सर मीटिंग। तो नो डिस्कस द क्लास। अरे रुको अभी ईडीए क्लास करेंगे। पब्लिक अगले अब ईटी का क्लास कौन करेगा फालतू का? बैठ लेना 3 बजे। 3 बजे से है। यही बैठेंगे। क्लास पिछले 2 बार से हुआ है। नहीं दो नहीं हुआ होगा नहीं हुआ। हमको लगता है इतना ईडी पढ़ना था। भाई हेलो हेलो बोलो भाई। सिलवाओ क्या कभी भी नोटिस। हेलो भाई हेलो क्लियरली बोलो। हेरोमैग्नेटिक के लिए केम क्या होता है? हेरोमैग्नेटिक के लिए लाट और पॉजिटिव होगा उसका स्टडी होता है भाई। हेरोमैग्नेटिक के लिए केम क्या होता है? अरे बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है केम हेरो के लिए। ग्रेटर देन 1 होगा। अच्छा वो तो पैरामैग्नेटिक के लिए होगा ना। पारा के लिए लेस देन 1 होता है। हेरोमैग्नेटिक के लिए 1000 से ज्यादा वैल्यू होता है भाई। हाँ 1000 से अच्छा थैंक यू भैया। अबे अब सब लीव करो ना, कितना अब हो गया पढ़ाई पे। तुम लीव करो। एक सवाल रहेगा जिंदगी में कि कब तो मीटिंग एंड की है चलेगा। जैसे भूगोल वाले को दोस्त बना देंगे। सर कहाँ गए अभी? सोचा तुम तो घूमने। सर हाथ खड़ा कर रहे, कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर कहाँ थे? 1 घंटा पहले था। मिस्टर एक्स है वो। आकाशदीप लीव कर दो, लूडो खेलेंगे। आ जाओ। चलो बेटा चलो, तुम कर रहा। आज इंक खत्म हो गया था भाई। अंदर आ रहा वीसा। जिंदगी में कब तो हम भूगोल वाले को दोस्त बना देंगे। तो हम ऊपर तो बेवफा मिली सोचा तुम तो मानो तो बोलना बोलने वाली बात। भाई लोग किसी के पास 15 तारीख का नोट्स है क्या? कौन सा? अभिषेक शुक्ला भाई 15 तारीख का नोट्स है क्या? होगा भाई, इतना को नहीं याद रखता है। मैथ का है भाई।
देना भाई प्लीज। फॉरवर्ड होते रहेगा, कहीं से गाइड मिल जाएगा। क्या कर देंगे फॉरवर्ड अगर आया होगा मेरे पास तो। थोड़ा किसी के पास भी है भाई तो थोड़ा सेंड कर दे यार, हम 15 तारीख को नहीं अटेंड कर पाए थे। अच्छा ठीक है, कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, नोट्स वोट्स का कोई जरूरत नहीं है। सर क्लास खत्म हो गया?